So, good morning to all in my channel Isan Study Adda. So, as we discussed in our last lecture, that is of acid, bases, and salt, part 2. Now we are moving with the part 3rd, in which we are going to discuss about action of dilute acids. That is, what is the meaning of dilute acids and how they react with the acids we discuss in this series. So now, without wasting time, let's move on to our series first. So now our next topic is action of dilute acids. Action of dilute acids on salts. Action of dilute acids on salt we are going to discuss. So we are going to discuss in first about what is the meaning of dilute salt. What is the meaning of dilute salt? So we have discussed in acid basis salt. Salts are of acids are of two types. One is dilute, another is concentrated. So concentrated means acid is 95%, and for example acid is 95% and water is 0. No, we वाटर की प्रेजेंस इसमें होगी ही नहीं. कंसंट्रेटेड एसिड मींस इट डजंट कंटेन वाटर, और इफ इट इज कंटेन वाटर देन इट इज नॉट मोर देन 5%. 5% से ज्यादा वाटर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो एसिड कैसा कहलाएगा? कंसंट्रेट. दैट मींस इट कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड. और वी कैन से दैट एसिड इज 100% in the amount, then also it is known as concentrated एसिड. कुछ केसेस में वाटर मिल जाता है, लेकिन 5% वाटर और 95% एसिड, दैट मींस acid is concentrated to in that state also. One another case is also there. Acid is 99% and water is 1%. So these are the cases in which acid remains concentrated, highly concentrated. Now we are going to move about dilute. So for dilute we are using one term, we acid or water amount. So if the water is 60% and acid is 40%, then it is known as dilute. That means it contains a water in more amount than acid. So this acid is known as dilute acid because its strength decreases. इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई डाइल्यूट एसिड की. कंसंट्रेटेड एसिड की स्ट्रेंथ 100% थी. दैट मींस इट इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म. नाउ डाइल्यूट एसिड बन गया, मिक्सचर बन गया. ये वाटर ऐड हुआ, 60% वाटर है, 40% एसिड है, सो इट इज अ डाइल्यूट फॉर्म. अनदर एग्जांपल, इट मे बी 50% water and 50% acid. This is also the case. Another case, very dilute. If we talk about very dilute acid, so very dilute acid in the case of nitric acid, in the previous slide we have discussed about. So it's a very dilute acid which used for formation of hydrogen. So very dilute means just opposite of very concentrated. That is, acid is only 1% and water is 99%. So it is a very dilute acid and this is a very concentrated acid. This is the difference between them. So now we move on the next part, that is action on salts. What is the action on salts? So we have discussed in earlier classes also. We talk about carbonate salts. Carbonate salts. So there is a mainly observation of gases. So carbonate salts evolved
carbon dioxide gas, CO2 gas. Now if we talk about sulfide salts, so sulfide salts evolve hydrogen sulfide gas, hydrogen sulfide gas. Now after that, sulfite. If we talk about sulfite salt, there is a difference between sulfate and sulfite. If it's a sulfite salt, then it forms sulfur dioxide gas. Then it forms sulfur dioxide gas. It is H2S and this is SO2. So this is the gases produced with the salts. So when react with carbonate salt, carbon dioxide gas, water and respective salt. Same case, hydrogen sulfide gas plus salt, hydrogen sulfide gas plus salt, or sulfur dioxide gas plus water plus salt. So similar reaction seen in carbonate salt and sulfide salt. What is the carbon dioxide gas evolved? Water form and salt. Now in sulfide, sulfur dioxide gas is evolved, water form and salt form. These are the similarities. There is a change. If there is a sulfide, then sulfur हमें पता है S से आता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बोनेट से बनता है तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब सल्फाइड में एक सिंपल चीज, उसमें वाटर फॉर्मेशन नहीं होगा, सीधी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म हो जाएगी और सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा. तो हमको पता है सल्फाइड माने इसका एक ही नाम आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड. It is very easy to learn in this way. Now we are moving to the one reaction which helps you to understand. So there is a one reaction for carbonate salt. Carbonate salts. There is a reaction for carbonate salt. First, that is, suppose we take calcium carbonate. That is calcium carbonate. We have taken the calcium carbonate, and now reaction of calcium carbonate. Now calcium carbonate is treated with acid. Calcium carbonate treated with acid, that is HCl. Calcium carbonate treated with acid, एरो पे नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी. HCl. HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है? डाइल्यूट है. कैसा है हमारा? डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है. सो व्हाट फॉर्म्स? कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसको ब्रेक कर देंगे ऐसा, तो देखो इधर से प्लस इधर से माइनस, तो यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, पहला तो पार्ट. अब कार्बोनेट है, तो हमने कार्बोनेट का डिसोसिएशन में पढ़ा था, जब कार्बोनेट की हीटिंग होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. तो यहाँ पे कार्बोनेट है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन भी जरूरी है. तो यहाँ पे हमने यहाँ गैस का फॉर्मेशन किया, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. नेक्स्ट, देन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक ऑक्सीजन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है. तो ऑब्वियसली बात है, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचा है तो ये वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे. सो H2O वाटर फॉर्मेशन हो गया. सो अब नीड टू बैलेंस देम. सो 2 और 2 HCl और हियर इज ये कंप्लीटली बैलेंस. सो ये बन गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड and water, carbon dioxide and water. Now we see there is a one difference. when we हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है वो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की H2SO4 के साथ प्रोसीड नहीं होगी. H2SO4 के साथ प्रोसीड नहीं होगी. क्यों नहीं होगी?
क्योंकि ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट हमारा इनसॉल्युबल है नेचर में। कैसा है? इनसॉल्युबल होता है। और ऐसी रिएक्शन है लेड कार्बोनेट, दैट मीन्स PbCO, वेट लेड कार्बोनेट PbCO3 होल ट्वाइस। इसकी HCl के साथ रिएक्शन नहीं होगी। HCl के साथ यदि ये रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा PbCl2, दैट मीन्स इनसॉल्युबल कंपाउंड। PbCl2 एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है। ये कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन हॉट वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ये कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन हॉट वाटर में इजीली डिसॉल्व हमारा हो जाता है। तो ये अपना बन गया एक लेड क्लोराइड के बारे में भी आपको पता है, और कैल्शियम का सल्फेट के बारे में। यदि नहीं पता तो 9th बुक है सेलिना की, वहां से सॉल्ट रिवीजन कर लें, या फिर आपकी बुक में गिवन हो तो वहां से सॉल्ट रिवाइज कर लें थोड़े से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों की रिएक्शन नहीं होती। दैट मीन्स हमको ये याद करके रखना है, यदि सॉल्ट इनसॉल्युबल बनेगा, सॉल्ट यदि इनसॉल्युबल बनेगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। सॉल्ट इनसॉल्युबल हो जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। क्यों? ना गैस बन रही है यहाँ पे, ना वाटर बनेगा, फिर वाटर नहीं बन पाएगा, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट लेड कार्बोनेट टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमको दो चीज याद रखनी है, क्या कि लेड कार्बोनेट ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और दूसरी चीज हमें क्या रखना है, और कैल्शियम जो कार्बोनेट है हमारा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा CaCO3, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PbCl2 भी एक क्योंकि यहाँ पे PbCl2 जो बन रहा है वो भी हमारा एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। PbCl2 हमारा एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और PbSO4 भी, लेड सल्फेट भी हमारा एक इनसॉल्युबल है। और इधर पे CaSO4 हमारा इनसॉल्युबल है। सल्फेट हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, लेड, बेरियम और कैल्शियम। तो एक बार आप सल्फेट की सीरीज चेक करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। Now we move to our next part, that is so next one thing is our in carbonate hydrogen carbonates of sodium, hydrogen carbonates of sodium and potassium, hydrogen carbonates of sodium and potassium are the only common carbonates, which exist in solid state, There is a one important thing which needs to be remembered. This is, now I'm using the different color, this one. This is to be very important thing, that hydrogen carbonate मतलब NaHCO3 and KHCO3. These are the hydrogen carbonates of sodium, and potassium are the only carbonate. ये दो ऐसे कार्बोनेट हैं जो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। NaCO3 and KHCO3 are exist in solid state. It may be asked in the form of MCQ, so please remember it.
So now we move to our next part, that is sulfite salts, sulfite salts or bisulfite salt, bisulfite. So sulfite और bisulfite सेम, सल्फाइड माने सल्फाइड सॉल्ट में क्या होगा, SO3 होगा, और बाइसल्फाइड में HSO3 होगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाई सल्फाइड भी बोलेंगे इसको, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलेंगे, और इसको नॉर्मल सल्फाइड बोलेंगे हम। नाउ वी मूव विद द रिएक्शन। अब हम रिएक्शन के साथ प्रोसीड करेंगे हमारी। सो हमने ले लिया, किसका सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम का ले लिया, कैल्शियम सल्फाइड का ले लिया एक सॉल्ट, और एक सोडियम बाइसल्फाइड ले लिया हमने। दोनों का रिएक्शन HCl के साथ करा दिया, दोनों का रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दिया। यहाँ बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, इधर बनेगा वाटर, और हमने बोला था सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दूसरे में NaCl वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दोनों केसेस में सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो साइन है, ये साइन हमारा किसका है, इवॉल्व ऑफ गैस। गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो इसका साइन है, और ये डाउनवर्ड एरो है तो डाउनवर्ड एरो बात करेगा प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेट दैट मींस इनसॉल्युबल कंपाउंड, इनसॉल्युबल कंपाउंड। So there is a two reaction. Now we study with the next part, that is sulfides, sulfides salts, सल्फाइड सॉल्ट्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्फाइड सॉल्ट में जिंक ले लिया हमने, जिंक सल्फाइड ले लिया, एक आयरन सल्फाइड ले लिया। दोनों की रिएक्शन एक के साथ हमने करा दी HCl की, और एक के साथ हमने करा दी H2SO4 की। HCl के साथ कराई तो जिंक ZnCl2 प्लस H2S, तो अवामड़ हुई है, ये है फेरस सल्फेट प्लस H2S, ये भी हो गया। सारी रिएक्शन है बैलेंस, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत है, इधर पे है ये 2HCl। सो हमको एक चीज रिमेंबर रखना है, डोंट फॉरगेट टू चेक इन MCQs equation balanced or not. Now move with the next part, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। बेरियम सल्फेट बनेगा जब किसकी रिएक्शन होगी, बेरियम क्लोराइड की, लेड नाइट्रेट की, और आपकी लेड नाइट्रेट की, दो बार रिएक्शन करा रहे हैं हम, तीनों में सॉल्ट बने। सल्फर के साथ एक रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ, एक रिएक्शन हो रही है इसकी HCl के साथ, और इसकी रिएक्शन हो रही है H2SO4 के साथ। तो हमने बोला था बेरियम जो सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, यानी इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो इसने कर दिया, और इसके साथ फर्दर एक एसिड और मिल जाएगा जिसका नाम है 2HCl। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, नेक्स्ट रिएक्शन में लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हुई, तो इसने अभी लेड सल्फेट बना लिया और साथ में HNO3 बना लिया। इसके बाद तो ये भी क्या है, एक प्रेसिपिटेट ही है, और ये भी 2HNO3 हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन PbCl2 भी एक PPT बनेगा, और इसके साथ जो आएगा वो HNO3 बन जाएगा। तो ये भी क्या है सर, ये है इनसॉल्युबल पार्ट्स, मतलब बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड, ये सारे तीनों कैसे हैं, इनसॉल्युबल पार्ट्स हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर इनके साथ एक रिएक्शन और है, उनके बारे में बताया गया है कि क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स रिएक्ट ओनली विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन वार्मिंग टू लिबरेट HCl and HNO3 रिस्पेक्टिवली। उसमें बोला क्लोराइड्स क्या है हमारे, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स react only
with concentrated sulfuric acid, to form or liberate HCl and HNO3। कैसे होगी रिएक्शन? NaCl है, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कर रहा है, और NaCl की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? हमारे कंसेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 कैसा है इसमें? कंसेंट्रेटेड। ये बना लेगा आपका NaHSO4, ये बना लेगा NaHSO4 प्लस HCl। अब यही रिएक्शन अब 200 पे होगी। NaCl रिएक्ट अब 200 डिग्री सेल्सियस और प्लस H2SO4। H2SO4 हमारा कैसा है? कंसेंट्रेटेड है। तो ये रिएक्शन जो होगी वो कैसे हो जाएगी? Na2SO4 प्लस HCl। अब बैलेंसिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2HCl, यहाँ आएगा 2NaCl। सो इस तरह से ये एक्शंस देखने को मिलेगा। अब कुछ एसिड्स हैं उनके बारे में बताया गया है, एक बार लिख के बता देता हूँ सारे। जैसे बोरिक एसिड है हमारा, फर्स्ट है हमारा बोरिक एसिड। इसको हम यूज करते हैं आई वॉश एंटीसेप्टिक, आई वॉश और एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। सेकंड है आपका सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, सिट्रिक एसिड का यूज हम फूड प्रिजर्वेशन में करेंगे, और विटामिन सी प्रिपरेशन में, विटामिन सी की प्रिपरेशन में करेंगे। थर्ड है हमारा जो इम्पोर्टेंट है ऑक्सैलिक एसिड। ये भी सारे हमारे इम्पोर्टेंट एसिड है जिनको याद रखना है। इंक स्टेन रिमूवर, इंक स्टेन रिमूवर मतलब इंक से लगने वाले धब्बों को मिटाने का काम करता है ये। फोर्थ है हमारा कार्बोनिक एसिड, सो इसका यूज हम करते हैं फ्लेवर ड्रिंक्स में। फ्लेवर ड्रिंक्स का मतलब हो गया हमारी कोको कोला वगैरह, पेप्सी, इनमें इसका यूज किया जाता है। और सोडा वाटर भी एक होता है जिसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। टार्ट्रिक एसिड, सो टार्ट्रिक एसिड का यूज हम करते हैं, टार्ट्रिक एसिड बी यूज फॉर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक का यूज होता है, घर में बेसिकली यूज होता है। उसके बाद आता है एस्टिक एसिड। सो एस्टिक एसिड का यूज हम किस में करते हैं? टेबल विनेगर एंड इन कुकिंग, खाना बनाने में। इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, एस्टिक एसिड को विनेगर बोलते हैं, टेबल विनेगर, इसको विनेगर भी बोला जाता है। और इन कुकिंग, और कुकिंग करने में भी इसका यूज हम करते हैं, मतलब खाना बनाने में भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स की क्लीनिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। इसके बाद है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमारा एक ऐसा एसिड है जिसको हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड मेडिसिन्स, मेडिसिन्स और परफ्यूम बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड जो हमारा है, नाइट्र से समझ सकते हैं, एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज हम एक्सप्लोजिव्स में करते हैं। और फास्फोरिक एसिड, सबको पता है फास्फोरिक एसिड का यूज होता है आपका फर्टिलाइजर्स में। फास्फोरिक एसिड का यूज हम करते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स में।
फॉस्फोरिक को ऐसे ऐड करते हैं NPK से, समझ सकते हैं। सो नाउ we stop sharing the whiteboard. So this is up to the action of dilute acids. From next class, we on next video we discuss about bases, types of bases and actions of acids. So now thank you for watching the video, and we come back with the new video soon.